Assalamualaikum my dear brothers and sisters. It is me Ruwaida Ijaz from grade 9th and today I am going to speak on the topic that is plasters. You may say, what are these plasters? These plasters are the cell organelles that are only present in the plant cells and euglenides. You may say, what are these euglenides? Euglenides belong to the kingdom Protista. They are the connecting links between plants and animals. You may say, what does this mean? Connecting links between plants and animals. मतलब कि ये कभी करते हैं behave plants की तरह और कभी एनिमल्स की तरह. जब ये सनलाइट में होते हैं तो उस वक्त ये अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और जब ये डार्कनेस में होते हैं तो ये अटैक करते हैं दूसरे एनिमल्स पे और बिहेव करते हैं प्रेडेटर्स की तरह, और ये शो करते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब है ये एब्सेंट क्यों है एनिमल सेल्स में? जो ये प्लास्टर्स है इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ऐड करते हैं कलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में और फ्लावर्स में. अगर ये प्रेजेंट होते इन एनिमल सेल्स में भी तो ह्यूमन जो है वो अलग अलग कलर्स के होते, जैसे रेड, ग्रीन, येलो एटसेट्रा. अब है इसकी डिस्कवरी. जो ये प्लास्टर्स है इनको किसने डिस्कवर किया? अर्नेस्ट हकल ने इन्हें डिस्कवर किया 1866. लेकिन जो इनकी डिस्टिंक्शन है, क्लियर डिस्टिंक्शन, इनको कैटेगोराइज किया वो किया सिकम्फर ने 1883. तो जो ये प्लास्टर्स है इसके 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम. पहला जो टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट वो टाइप है जो कलरलेस है. ल्यूकोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टर्स दैट इज कलरलेस. दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक लिपिड्स, proteins and starch. The leucoplast in which lipids are stored is called eleuplast, and in which proteins are stored is called proteinoplast or eleuroplast, and in which starch is stored is called amyloplast. दूसरा टाइप, सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टर्स इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट इज दैट टाइप ऑफ प्लास्टर्स दैट इज कलर्ड. क्रोमोप्लास्ट्स आर कलर्ड एंड ल्यूकोप्लास्ट्स आर कलरलेस. These chromoplasts contain 2 pigments, that is yellow pigment and orange pigment. Yellow pigment is called xanthophyll and orange chromoplasts is to add color to fruits, flowers and vegetables of the plant. Then is the third and the most important type of plasters, that is chloroplast. Chloroplast is a double membrane cell organelle and it is semi-autonomous or self-replicating body. You may say, what does this mean, semi-autonomous or self-replicating body? Semi-autonomous means that has its own genetic material, that is DNA and ribosomes. These chloroplasts the chlorophyll is present in these chloroplasts, so they are associated with the photosynthesis. These chloroplasts prepare their own food by the process of photosynthesis. These chloroplasts are, that is why they are called the kitchen garden of the cell. Now length of these chloroplasts, their length varies from 5 to 10 micrometer and width varies from 2 to 4 micrometer. These chloroplasts are present in different numbers in different cells. Like in Chlamydomonas, there is only 1 chloroplast, but in this green algae there are 20 to 40 chloroplasts. And their discovery, the chloroplasts were discovered by Hannes von Mohl in 1837, but the term chloroplast was coined by Strasburger. Then is the chemical composition. Chemical composition means ये जो ये क्लोरोप्लास्ट्स है ये बने किसके हैं? तो ये बने हैं, इनमें होता है पानी, होता है प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और पिगमेंट्स होते हैं. इनमें पानी होता है 50%, लिपिड्स होते, प्रोटीन्स होते हैं 25%, लिपिड्स होते हैं 10% और पिगमेंट्स होते हैं 10%. पिगमेंट्स इसलिए इसमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनका काम होता है कलर ऐड करना प्लांट के पार्ट्स में. अब है इसका स्ट्रक्चर. जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसका प्लास्टर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है क्लोरोप्लास्ट. ये दिखता कैसा है? जो ये है इसका स्ट्रक्चर, और जो ये वाली लाइन है इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. जो ये वाली है इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. जो कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये क्लोरोप्लास्ट है इसमें 2 मेम्ब्रेन्स है. ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इनर और आउटर. और जो ये है ये ग्राउंड मैट्रिक्स, कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स, इसे कहते हैं स्ट्रोमा. ये जो स्ट्रोमा होता है ये कलरलेस
प्रोसेस होता है और ये मदद करता है, इसका काम होता है, ये एसोसिएट होता है डार्क रिएक्शन में। और जो ये है एक जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं थैलाकॉइड। और जब एक थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर जब इसके ऊपर और एक थैलाकॉइड आता है और एक थैलाकॉइड आता है, जब ये एक अंबार जैसा स्टैक जैसा बनाते हैं उसे कहते हैं ग्रैनम। और जब ये दो ग्रैनम मिलते हैं तो इसे कहते हैं ग्राना। और जो ये ग्राना है इनमें होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और एसोसिएट होते हैं लाइट रिएक्शन में। अब है इसकी फंक्शंस। ये जो प्लास्टर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनकी फंक्शन क्या होती है, ये किस लिए ज़रूरी होते हैं इस प्लांट सेल में। पहले हमने देखा जो पहला टाइप है वो करता है स्टोरेज में मदद, मतलब कि जब इसे ग़िज़ा की ज़रूरत है तो ये स्टोर करता है ग़िज़ा को, जब फिर इसे ज़रूरत पड़ती है तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये इसे प्रोवाइड करता है वो ग़िज़ा, तो ये हमें मदद करता है स्टोरेज में, स्टोर फूड करने में करता है प्लांट्स को मदद। और दूसरा जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, ये करता है कलर ऐड करने में मदद, ये कलर करता है ऐड, और इसी कलर की वजह से जो फ्रूट्स फ्लावर्स जो गार्डन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये कलर करता है ऐड, मतलब कलर ऐड करने में ये मदद करता है। अब है और एक फंक्शन जो कि इसकी सबसे ज़रूरी फंक्शन, सबसे वाइटल फंक्शन जो है वो है ये मदद करता है ग़िज़ा बनाने में। इसमें मौजूद होता है इसके एक टाइप जो कि क्लोरोप्लास्ट, इसमें मौजूद होता है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस फिर जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस की मदद से वो खाना प्रिपेयर करता है जो कि प्लांट को ज़रूरत लगता है ग्रो करने में। और एक फंक्शन इसकी होती है फूड प्रिपेयर। Thanks. This was all about my